What's up? Hello guys. So today we'll start. Uh, we'll do the calculus part. Okay, first calculus part. This series is for NDA, NA, and CDS. Okay, calculus part. Please 10205. Okay, yeah. Calculus part. We did algebra. We did trigo. Now we'll do calculus, then vector. Vector already 3D and probability. Okay, time is limited, so I will try to do as much as possible. Main concept, important concept which can come. This is bilingual, means English and Hindi both. So don't worry. And even we'll get to see. So let's start. Okay. This one, yes. I'm attaching this here. Let's see. Is it visible? Am I audible and visible? So start with this question number 75. Okay. So question number 75 is 2 minus, it is a differential equation question, 2 minus dy dx square to the power 0.6, that is 6 by 10 is equal to d2y dx2. Now they want you to calculate, okay, they want you to calculate order and degree. First of all, this is a differential equation. This is a differential equation format. So we know that power should not be fractional. So make it this 2 minus dy dx whole square 6 by 10. So make it 6 by 10 to the power 10. So d2y dx2, or you can say so 2 minus dy dx whole square. Just few seconds question. 10 cancel out, 6, that is equals to d2y dx2 10. Now you can 2 dy dx whole square. No need to 6 and 10, so make it 3 and make it, इसको ऐसे 2 से तो डिविजिबल है ही दोनों तरफ. एक्चुअली ये 5 से both side power should not be, it is fractional ना, should not be fractional. ये fractional नहीं हो सकता differential equation में, not fractional. तो fractional तो उसको इंटीग्रल फॉर्म में ले जाना है, उसको चेंज इट इनटू इंटीग्रल फॉर्म. सो दिस, अब देखो ये जो इक्वेशन है, दिस इज मेन डिफरेंशियल इक्वेशन. उसमें डिग्री क्या है? मैक्सिमम डिग्री का जो ऑर्डर, द ऑर्डर ऑफ द मैक्सिमम डिग्री, सॉरी, डिग्री ऑफ द मैक्सिमम ऑर्डर. मैक्सिमम ऑर्डर क्या है? ऑर्डर इज 2 सेकेंड डिग्री, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, second order, and
और डिग्री ऑफ द मैक्सिमम ऑर्डर ये है दिस वन, तो उसका 5, so this will be the correct option. 2, it is order and degree, first order then degree. Only one एग्जाम में 30 सेकेंड भी नहीं लगे. Okay, it will take only a few seconds to complete this. That means जब भी ऐसा होगा you have to find out the maximum order. Maximum order is here is second order. 2, ये नहीं होगा ये फर्स्ट ऑर्डर से मैक्सिमम ऑर्डर का जो मैक्सिमम डिग्री है उसका जो इंटीग्रल पावर है. ओके, दिस हाउ यू फाइंड आउट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर एंड डिग्री. मुझे तो चॉक बोर्ड ही अच्छा लगता है, चेंज करके व्हाइट बोर्ड भी कर सकते हैं. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74. इंटीग्रेशन -1 to 1 3 sin x minus sin 3x cos square x dx, ये कितना होगा? अच्छा देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फर्स्ट sin 3x का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज sin 3x फॉर्मूला? 3 sin x minus 4 sin cube x. Remember trigonometry. So 3 sin x, इसको थोड़ा ऑल्टर करो, minus sin 3x that is equals to 4 sin cube x. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, -1 to 1 4 sin cube x. देखो 3 sin x minus sin 3x is 4 sin cube x cos square x dx. -1 to 1 4 sin square x. समझे? ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर है, SOP. cos square x is अच्छा क्यूब था ना, ऑड इवन करके कर सकते हैं? नहीं, -1 to 1. वो भी हो सकता है. लिख के क्या करो, इसको ऐसे करो, 4 बाहर sin क्यूब x ना, सो मेक इट sin x sin square x को ऐसे लिख सकते हैं 1 minus cos square x और cos square x dx. So that is 4 -1 to 1. देखो cos square x minus cos 4x sin x dx. ऐसा कर दिया मैंने. Now देखो क्या करेंगे, लेट देखो cos x 4 -1 to 1, take cos x as z, cos x equals to z as you go, so minus sin x dx will be dz, ddx of cos x is minus sin x. So देखो ये क्या हो रहा है. अच्छा, लिमिट बाद में चेंज कर देंगे. cos square x is z square minus z to the power 4, और ये sin x dx की जगह minus dz we can calculate. अच्छा, अब लिमिट भी चेंज करना है. यहाँ पे x और z, अगर x की जगह माइनस, अच्छा cos x z ना, -1 to 1 ये ना -π/2 cos x कैसे -1 to 1 इंटीग्रेट कर दे, सो दैट विल बी -π/2 to π/2. ठीक है, वो मैं थोड़ा सा ये -π/2 to π/2 cos
प्रॉब्लम है। तो ये ऑड इवन फंक्शन करके भी कर सकते थे, ये तो इवन फंक्शन होगा ना। एक मिनट, ये sin x 3 sin x sin 3x 4 sin क्यूब x, मेरा क्या आया था 4 sin क्यूब x, हाँ cos स्क्वायर x। अच्छा, ये तो एक ऑड फंक्शन है, इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन में 0 है, हाँ 0 है, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंटरवल अलग था तब करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे मेरा क्या आया था 4 -1 to 1 4 sin क्यूब x, एकदम जो सोच रहा था वही, दैट वन। देखो तुम इसको fx एज्यूम करो कि fx इज sin क्यूब 4 sin क्यूब x cos स्क्वायर x, f of minus x यूज कर, डेफिनेट इंटीग्रल 4 sin of minus x होल क्यूब cos minus x, वो तो ऑब्जर्व हो जाएगा लेकिन साइन ऑब्जर्व नहीं करता, सो दिस इज इक्वल्स टू -4 sin क्यूब x cos स्क्वायर x। so f of minus x बेसिकली माइनस ऑफ fx होता है, याद है वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये 0 होगा। देखो ये फॉर्मूला, अगर f of minus x माइनस एफ एक्स होता है तो इंटीग्रेशन -a to a एफ एक्स डी एक्स -a to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0 होता है। और अगर ये बिकॉज इट इज एन ऑड फंक्शन, इससे ही हो जाएगा उतना कैलकुलेशन, और आखिर में ऐसे भी सब्सटीट्यूट करके करते तो भी 0 ही आता, क्योंकि -1 to 1 ये भी हो सकता था फॉर इवन फंक्शन। ये तो इवन फंक्शन है नहीं, ये टोटल फंक्शन, ये इवन नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट एन इवन फंक्शन। गॉट इट, दिस इज द प्रॉपर्टी, हैशटैग ना मेन कॉन्सेप्ट। ये एक्चुअली तुम्हारा इंडिया 2024 टाइप है क्वेश्चन, विल डील विद लॉट्स ऑफ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ऑल्सो। ये थोड़ा इजी था। और एक क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन 76 है, यस, कितना dy dx इज इक्वल टू 2 e to the power x y क्यूब, वेरिएबल सेपरेबल से ही हो जाएगा। सो y to the power -3 dy is equal to 2 e to the power x dx. Now taking, it is variable separable method for differential equation. So y to the power -3 plus 1 by -3 plus 1 2 e to the power x, integration of e to the power x is e to the power x plus c. So y to the power -2 by -2 is equal to 2 e to the power x plus c. Now it is an initial value problem. देखो क्या given है, y0 equals to half, this is given, मतलब when you substitute x equals to 0, this is x and this is your y, substitute कर दो, y is half, half to the power -2 divided by -2 is equal to 2 e to the power 0 plus c. मुझे c कैलकुलेट करना है, दिस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये तो तुम्हारा हुआ वेरिएबल सेपरेबल मेथड, बहुत आसान है, वेरिएबल सेपरेबल। जो ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल, इंटरचेंज dy यहाँ है, वहाँ पे y ले आओ एंड dx का जगह वेरिएबल सेपरेबल मेथड। 2024 क्वेश्चन, सेशन 1। अच्छा, हाफ टू द पावर है तो ये कितना होगा, सो 4 by 2 कितना, दिस इज योर 2 e to the power 0 is 1 c 4, ये 4 by -2, so -2 -4 c is equal to -4 होगा, देन -4
तो तुम्हें पूछा क्या गया है, they ask to calculate बता देना 4y स्क्वायर 2 e टू द पावर x का वैल्यू चाहिए। अच्छा तुम्हारा क्या था यहाँ पे, y टू द पावर -2 बाई -2, यही था ना, -2 e टू द पावर x प्लस c की जगह -4 करेंगे। अच्छा now y टू द पावर -2 इज इक्वल टू -4 e टू द पावर x प्लस 8। सो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, -4 कॉमन अगर लेते हैं, +4 कॉमन लेते हैं, सो 2 e टू द पावर -x और यहाँ पे हुआ 1/y²। हमें 4y का चाहिए, दैट इज 1 इक्वल टू 4y²। देखो डायरेक्ट आ गया, थोड़ा मेन डिफरेंशियल इक्वेशन ये था सॉल्व करने के बाद। आफ्टर सॉल्विंग दिस एंड सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ दिस इज योर c, देखो ये इनिशियल वैल्यू है, IVP इनिशियल वैल्यू गिवन है, दिस इज गिवन। ठीक है नहीं, तो 1 will be the correct answer, this will be the answer, correct option 1 होगा। हाँ 1 है, तो फर्स्ट ऑप्शन इट इज 2020। इट्स अ वेरिएबल सेपरेबल, जहाँ जहाँ वेरिएबल है मिडिल थिंग इतना हिंदी में सबटाइटल आ जाएगा, फिर भी मैं आई विल ट्रांसलेट, थोड़ा थोड़ा ट्रांसलेट करके बता दूँगी मैथ्स में क्या कौन सा हिंदी कौन सा मैथ्स में। नेक्स्ट और एक अच्छा ये पेपर थोड़ा सा लेवल पेपर, ये इसमें जो कॉन्सेप्ट है इसका रेगुलर इंटरवल में दिस पेपर मैंने इम्पोर्टेंट लिख के रखा है, ये पेपर से ये पेपर था ना, ये एक बार अदरवाइज UPSC वेबसाइट में भी मिल जाएगा। RD शर्मा हो या जो भी है, ठीक है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल गेट टू सी, कैलकुलस में हो या जो भी पोर्शन है, अच्छे से उस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा पेपर का ये है। सो फर्स्ट एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्वेश्चन है, उसके साथ मैक्सिमा मिनिमा है, राइट, तो करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर इसका 83 एंड 84 दोनों ही हो जाएगा। इट्स अ लेंथी 2 क्वेश्चंस। fx equals to x log x where x greater than 1 given, ठीक है। First find f dot x, derivative of fx, so that is d dx of x। ये लोग प्रैक्टिस नहीं किए, मैं फॉर्मूला भी बता दे रहा हूँ, d dx of u by v, डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर कांस्टेंट, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, माइनस u dv dx। क्वेश्चन रूल,
This is u, this is v. Denominator square, denominator, numerator derivative minus numerator denominator derivative. Now do ln x square. This is v, this is your u. Okay, so log x ddx of x minus x ddx of log x. F dot x is actually derivative dy dx. ddx of x is 1, right? So ln x into 1 minus x into ddx of log x is 1 by x. X cancel out. So it becomes ln x minus 1 by ln x square. This is your formula. Next time से करेंगे. This is the concept of formula even से. देखो तो लेकिन ये वो तो now what will we do? We step by step will consider the statement. Okay, ये भी मुझे सिर्फ ये चाहिए. अच्छा देखो, f dot x equals to log x minus 1 by log x square. Now first question is question number 83 is fx is increasing in the interval e to infinity. अच्छा, if fx is or will be increasing, it will be an increasing function if f dot x at that interval is greater than 0 and fx, this is your concept for any function, any real valued function. Okay, fx will be decreasing. Write it down, लिख लो. if f dot x अगर less than 0 होता है then it will be a decreasing function, and if f dot x is greater than 0 then it is an increasing function. ये मुझे बता देना. I will write it. अच्छा देख, so that means if f dot x greater than 0, so that means ln x minus this square is greater than 0. So that means ln x minus 1, क्योंकि यही डेरिवेटिव आया था f dot x फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव greater than 0. ln x is greater than 1 and 1 is actually what? 1 means log of e. So that means x is greater than e. So ठीक है, greater than e means e to infinity. So that means domain of f should be x belongs to e to infinity. E open bracket and infinity to open bracket. So first fx is increasing in the interval. Which interval? E to infinity. Okay. Now we have to check whether in a certain interval कोई interval में वो decreasing हो रहा है कि नहीं. ठीक है, मेरे पास तो ये है, मैं कर रहा हूँ. देखो this is वो increasing के लिए था, for decreasing. If decreasing, ठीक है, magic power.
लेस देन जीरो, तो ये भी लेस देन जीरो, इसे रिवर्स कर दो, दिस इज लेस देन जीरो, ये मैं फिर से डिक्रीजिंग के लिए तो एफ डॉट एक्स जीरो होगा ना, लेस देन जीरो, 1, एक मिनट, लेस देन ई 2 to 3 के बीच में होता है ई का वैल्यू, so if x is decreasing in the interval 1 to e, is it correct? 1 to e, देखो नेगेटिव तो नहीं हो सकता है, 1 to e, हाँ क्योंकि 1 log 1 नहीं होगा, log 1 is 0, right? ln e, हाँ, yes, less than e, so x belongs to 1 to e, e से लेस और 1, क्योंकि नेगेटिव नंबर का लॉगरिथम इज नॉट डिफाइंड इन आवर ये, सो 1 to ये भी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगर तुम जीरो लॉग जीरो अनडिफाइंड, लॉग नेगेटिव यू डोंट, टू द बेस ई, क्योंकि बेस ई है, सो यू कांट टेक। अच्छा, और एक स्टेटमेंट है वो भी थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, यू हैव टू चेक, मैं यहाँ पे चेक करूँ, इतना याद रखना, log 1 0 होता है, log 0 अनडिफाइंड, इंफिनिटी या अनडिफाइंड यू कैन से, ये सब नेगेटिव नंबर अगर होता है ना, तो क्योंकि ये बेस ई है, सो वी डोंट हैव टू थिंक इनवैलिड, इसलिए 1 to e ओपन इंटरवल। अच्छा, ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करता है। अच्छा, 9 log 7, 7 log 9, नाउ if x क्या था, x log x, तो log 9 क्या होगा, दैट इज 9 log 9, और f7, what will be f7, 7 log 7, now in the, मैंने क्या था, e to infinity, when x belongs to e to infinity, if x is increasing, right? Increasing था तो it was increasing function, so that means देखो 7 is greater than 9, if increasing function तो f7 will be greater than f9 होगा, तो because it is in this interval e तो 2 to 3 and infinity, तो if 7 to 7 तो greater than 9 है, अब ये पुट कर दो ये दोनों यहाँ पे, तो दैट मीन्स तुम्हारा क्या होगा, सॉरी मैंने रिवर्स कर दिया, सॉरी, 9 is greater than 7, that imply increasing function in that interval, so if 9 is greater than f7, so that imply 9 log 9 is greater than 7 log 7, so 9 log 7 is greater than 7 log 9, देखो थर्ड ऑप्शन क्या है, 9 log 7 is greater than 7 log 9, तो 1 2 3 तीनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है, 3 are, all 3s are correct statement. This is actually मैंने एक्चुअली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो चैप्टर था, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग मोनोटोनिक डिक्रीजिंग,
इन दिस इंटरवल e टू इन्फिनिटी, ये तो एफ एक्स तो इंक्रीजिंग था, इंक्रीजिंग फंक्शन, पूरा टोटल चैप्टर ही जितना कॉन्सेप्ट कोई भी फंक्शन के लिए होगा, ठीक है। अच्छा, और ये थोड़ा देख लेना, ठीक है, गिवन था ये फंक्शन और इस इंटरवल में वो इंक्रीजिंग फंक्शन था, सो दैट मीन्स इन दैट इंटरवल f9 इज ग्रेटर देन f7 होगा, इंक्रीजिंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ये होगी। ओके नेक्स्ट, ये सभी टाइप का क्वेश्चंस थोड़ा सा, और डी शर्मा ये जो भी स्टैंडर्ड जेई फर्स्ट ईयर्स का इंडिया फर्स्ट ईयर्स टाइप्स क्वेश्चंस विल बी मोर रेलेवेंट, ओके इंडिया, ठीक है।